tell you much. I'd definitely like you to explore yourself. So there are a few questions I would like all the parents to answer. Can we I cannot see parents. Can we switch this off? The light. Like Sam is not here, so please join. Okay. Can I get the mic? I'm not saying it is wrong. It is not at all wrong. It is normal. But yeah, we need to change. We need to do something about it, right? Okay. Raise your hand if you have ever compared your child to someone who is not doing better than them. Very few. That is what I'm making, I'm trying to make a point here. हम हमेशा उस इंसान से कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को जो उनसे ऊपर है ना? बहुत कम होता है जब हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि यार we feel grateful to have you as our kid and that is what they really need. But yeah, that comparison is what you need as a parent and you think that it is important. But see, I'm working with kids. I'm working as a school counselor, okay? This is something that is my observation. The comparison destroys children's confidence. जब बच्चों की बात आती है, criticize करना is very easy. Appreciate करना very difficult क्योंकि हमें लगता है कि शायद appreciation will not motivate them, right? But appreciation is one thing that they are seeking for. वो आपकी आंखों में अपने लिए प्राउड देखना चाह रहे हैं. छोटा सा भी अपने अंदर वो चेंज ला रहे हैं तो are you people appreciating it? Yeah? But छोटी सी भी वो गलती करें, no, तो you are not supposed to do that. अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते. वो अच्छे बच्चे बनने के चक्कर में उन्हें समझ ही नहीं आता कब वो people pleasers बन जाते हैं. कब उन्हें ये समझ नहीं आता कि मैं हर चीज़ पे yes तो कर रहा हूँ but people are taking advantage of me. I don't know if I'm making sense to you people or not, but believe me, when they grow up, when they enter in teenage, this particular time when they are a kid, यहाँ की lessons they take it with them, and when they reach there, they just feel everything is not making any sense to them anymore. And then they get confused कि चल क्या रहा है मेरे साथ, मुझे जो बोला था सही मैं तो सब कर रहा हूँ, फिर भी I am not able to make people happy क्योंकि हम बता ही नहीं रहे कि you need to make yourself happy first. Are you making it? Am I making it clear? How many of you are relating to me? Understanding? समझ आ रहा है? English is okay with everyone, right? So basically सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है बच्चों में नहीं है वो है सेल्फ लव. मैं सिर्फ ये 10 मिनट इसीलिए लेना चाहूँगी. अपने बच्चों को खुद से प्यार करना सिखाइए. पेरेंट्स इम्पोर्टेंट है, दोस्त इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो खुद है. जब तक वो नहीं जानेंगे कि वो कितने अमेजिंग है, कितने वर्दी हैं, तब तक they would never prioritize things that make sense to them. They'll always see कि दूसरों को किस चीज़ में खुशी मिलती है, मेरे पेरेंट्स को किस चीज़ में खुशी मिलती है. एंड इट्स फाइन पेरेंट्स को खुश करना, लेकिन पेरेंट्स के लिए मैं जिस चीज़ में बेस्ट हूँ अगर मैं वो नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता एक टाइम पे आकर के मेरे पेरेंट्स भी मुझसे खुश होंगे. If you have any question you can ask. That's it from my end. Anyone, any question? The audience, any question you can ask. They leave it until 11. You can ask anything. Are you going to ask something? No? Am I clear? All clear? I just... Okay, thank you so much. Good afternoon, Sheila. I can't hear you. Can you hear me? Can you hear me? But I can't hear you. So one more time, good afternoon. बाहर तक भी नहीं गई आवाज. बाहर तक भी नहीं गई. Good afternoon. How's the Josh? How's the Josh?
आप सब यहाँ पर आए और जिन बच्चों ने भी परफॉर्म किया, मैं सिर्फ एक ही परफॉर्मेंस देख पाया, बट यस जैसे कि एक सर ने कहा कि एक बच्चों ने परफॉर्म किया, ट्विंस बच्चों ने, और उन्होंने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया क्योंकि मनोज सर और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करवाई है। आई कैन सी दैट, और आई कैन सी द कॉन्फिडेंस इन द किड्स एज वेल एज ऑन द पेरेंट्स फेसेस। सो आज जो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, बच्चों से भी बात करना चाहूँगा। ठीक है बच्चा, बात करेंगे उससे? तो बात करेंगे बेटा? परफेक्ट परफेक्ट। सो बेटा आज मैं, जैसे अभी मैम ने भी बोला कि लव योरसेल्फ, राइट? कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आप किसी और को भी प्यार नहीं दे पाएंगे, क्या? सो लव योरसेल्फ एंड एज वेल एज मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा ट्रस्ट योरसेल्फ, राइट? बिकॉज अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे ना, दुनिया आप पे ट्रस्ट करेगी। आप जो सेल्फ डाउट कभी मत करना, राइट बेटा? क्या नहीं करना? सेल्फ डाउट क्या नहीं करना? राइट। सो ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे, सो आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी फिजिकल हेल्थ है, दैट वुड बी बेटर, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि आप बच्चों के साथ में एक ऐसी बॉन्डिंग बनाइए कि बच्चे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकें। ओके? देखो कहते हैं ना कि टीचर, एडवोकेट और डॉक्टर्स लाइफ टाइम सीखते हैं, राइट? बीइंग ए प्रोफेशन, मैं भी एक टीचर हूँ, तो मेरे को एक 10 साल की बच्ची ने बहुत कुछ सिखा दिया अबाउट द पेरेंट्स एंड किड्स बॉन्डिंग। हुआ यूं कि लास्ट टाइम मैं जब बेंगलोर जा रहा था फ्लाइट में, इट वाज इंडिगो की फ्लाइट थी, तो फ्लाइट में सारे थे, कुछ डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, इंजीनियर्स थे। बेंगलोर सिटी आपको पता ही है इसलिए फेमस है। सो जब हम जा रहे थे वहां पर, तो रास्ते में थोड़ा सा प्लेन में टर्बुलेंस हुआ, राइट? प्लेन थोड़ा सा जिगजैग हुआ, तो हम सब थोड़ा सा टेंशन में आ गए कि प्लेन तो थोड़ा सा डगमगा रहा है, टेंशन में आ गए। तो हम सारे एक दूसरे का फेस देख रहे थे और कहीं ना कहीं वी आर प्रे टू द गॉड कि सब कुछ ठीक हो जाए, राइट? लेकिन जब मैंने आगे देखा कि आगे की सीट पे ना एक 10 साल की बच्ची, जैसे हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे एक 10 साल की बच्ची बैठी हुई थी। वो अपना कुछ मोबाइल पे गेम खेल रही थी या कुछ टॉय से खेल रही थी। मतलब तकरीबन 5 to 10 मिनट्स का ये प्रॉब्लम रहा और वो अपना मस्त बैठी है, राइट? उसको कोई टेंशन नहीं। तो जब सब कुछ ठीक हो गया और हमने अपनी जो सीट बेल्ट है वो ओपन कर ली, तो मैं बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ उसके पास गया। मैंने बोला बेटा इतना यहाँ पर टेंशन का माहौल था, तो आपको फील नहीं हुआ कुछ? वो कहती नहीं। मैंने कहा बेटा ऐसा क्यों? वो कहते सर जो अंदर बैठे हैं ना, यानी कि जो कॉकपिट में बैठे हैं पायलट, वो मेरे पापा हैं। ठीक है, वो मेरे पापा हैं, तो मुझे उन पर ट्रस्ट है कि वो ठीक कर ही लेंगे। तो ऐसा ही ट्रस्ट बेटा हमें अपने पेरेंट्स पर भी होना चाहिए और ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि हमारा बच्चा आराम से कह सके, कुछ भी किसी भी प्रॉब्लम में हो, कि मेरे पापा या मेरी मम्मा क्या कर लेगी, मेरी मम्मा संभाल ही लेगी, राइट? तो इसलिए जैसे मैम ने भी कहा कि आप प्लीज अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनाइए, और उसका एक सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ। आपको सब एक प्रैक्टिस करनी है डेली, और हार्डली 2 से 2 मिनट भी नहीं लगेगा। जब भी बच्चा स्कूल से आए, है ना, या कहीं कैंप पे गया है, स्कूल में गया है, हमारी क्लासेस में आया है, आके बच्चों से 2 चीजें पूछो। ठीक है? फर्स्ट थिंग, बेटा आज ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको सबसे अच्छा लगा स्कूल में, है ना? सबसे अच्छा मोमेंट क्या था? तो वो अपना बताएगा सबसे अच्छा मोमेंट। फिर उससे कुछ अच्छा बेटा कुछ ऐसा भी था जो आपको अच्छा नहीं लगा, कोई ऐसा मोमेंट जो और बेटर हो सकता था, राइट? तो उससे क्या होगा कि बच्चे की झिझक खुलेगी। कुछ भी अगर बच्चे के साथ यस नो कुछ भी जो हम नहीं चाहते कि वो हो, तो हमें देन एंड देयर पता चल जाएगा, देन वी कैन फिक्स इट। यस और नो, राइट? सो प्लीज वंस अगेन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सब पेरेंट्स से कि प्लीज ट्रस्ट ए बॉन्ड विद द किड्स, और उनसे प्लीज जरूर डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कीजिए। या so that's all from my side. Thank you. If you have any question from my side, you can ask. Thank you. यार की आवाज नहीं आई। Thank you everyone. Let me share the example. So now, right? So here we have Riya ma'am. Okay, but Riya ma'am can't be here. She's not personally here,
I'm not talking about you being safe. So here we have Diya Bajaj ma'am also. So like I just want to play the message for you. And the entire Anarshula family, Namaste. This is Diya Bajaj, your abacus teacher. I hope you all are enjoying there. I wish I could be there with all of you today to celebrate this wonderful meet and greet, but due to some unavoidable reason, I am unable to attend you in person. So I just want to say to all my leader chaps, you make me proud every single day. No matter what the results are, but it's your hard work, your dedication and your effort that truly matters for me. So today is your day to shine, and I know you will light up the stage with your talent and achievements. For parents, I would like to say thank you for placing your trust in Anarshula. I may be away, but my heart is right there with all of you. Wishing you all a successful, fun-filled and memorable celebration. Keep smiling, keep practicing and always believe in yourself. Thank you. Thank you so much Diya ma'am. तो कितने साल बच्चे यहाँ पे कोई यहाँ से क्लासेस लेते थे या लेते हैं? Okay, all right. I can see the audience. ठीक है, लोग अच्छे से ध्यान से कर रहे हैं. ठीक है. All right. So आपको क्या करना है? टेबल्स कहाँ तक आते हैं आपको? 12 तक आते हैं. Are you sure? मेरा इंस्टीट्यूट बंद कराने वाले हो आप. मैं दावा कर रहा हूँ कि मैं 99 तक के टेबल सिखाता हूँ. 99 into 9. Yes, sir. 99 into 9. मैंने ये नहीं पूछा how is the जोश. 99 into 9. 891. बच्चों की आवाज़ आ रही है, पेरेंट्स की आवाज़ नहीं आ रही है. सबको पता है पेरेंट्स की बच्ची. ठीक है. सो मुझे भी नहीं आते. ठीक है. सो आई यूज द कैलकुलेटर. ठीक है. और यू कैन ऑल्सो ओपन योर कैलकुलेटर. ठीक है. सो ही इज गोइंग टू आंसर. ठीक है. ट्राई करना. अगर आपने आंसर दे दिए तो चॉकलेट ले जाओ, और अगर आंसर नहीं दिए तो मेरे घर पहुंचा देना. ठीक है. इज इट ओके? शर्ट मौजूद है मेरी वहाँ से. ठीक है. ओके. Okay, so now, any other plan activity or unplanned activity you want to do? ठीक है, कोई अपने घर से कुछ तैयार करके आया, टाइम टू से समथिंग, है ना? समझ नहीं था. आपने दिखाया पार्टिसिपेट. ठीक है, स्टेज इज योर्स. ठीक है, कुछ भी अगर आना है, पार्टिसिपेट करना है. एनीवन रोज रोज ये मौका नहीं मिलेगा. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. पापा के साथ में क्या होगे, अकेले आओगे? थैंक यू शिवा. ओके, क्या करना चाहते हो आप बताओ? सिंगिंग अबाउट व्हाट?
ओके Everything I am, everything I breathe, everything I want, everything I want, I give it to you all, I give it to you all, and do you thankfully, thankfully, every song I sing, every place I bring, everything I choose is a gift to you. Everything I am, everything I want, everything I breathe, everything I breathe, I give it to you all, I give it to you all, and do you thankfully, thankfully, every song I sing, every place I bring, everything I choose is a gift to you. Thank you so much for your lovely message. Okay, so I would request. Okay, Tashi, you want to participate in any activity, right? So there is a song. Okay, you want to come? Okay. So be ready, right? I'll take next to you. So here we have Tashi, Shravya, and Dishani. So be in the line, right? So can you please come here? So you can come here directly. मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कुछ करना है तो डटकर चलो, थोड़ा दुनिया से हटकर चलो। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलटकर चलो। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी को अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगी तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार उनकी, जिंदगी में आज भी झमेले हैं। थैंक यू।
कितने होते हैं, 12 हाइड्रा कितने होते हैं, 8 नाइन्स कितने होते हैं, मुझसे तो 2-4 ही बताए गए। फिर उसके बाद ना उन्होंने मेरी खूब इंसल्ट की और मेरे को बोल दिया इसको तो कुछ भी नहीं आता। यार ये सारे रिश्तेदार ना ऐसे ही होते हैं, आते और पिटवा के चले जाते हैं पेरेंट्स से। भाई तो लेकिन ये मैथ्स भी है ना, ये मेरा पीछा क्यों छोड़कर समझ नहीं आता। इतना याद करने की कोशिश करती हूँ मैं, टेबल की ना 10-10 बार याद से रहते हैं, पर पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ। x square y z plus 3xy square z plus 3xy z square is equal to x plus y plus z का होल क्यूब। आ गया समझ? नहीं आया? नहीं आ रहा यार, एक बार और समझा दे, सच में दिमाग के ऊपर से गया है ये तो बिल्कुल। आखिरी का है, समझ लियो। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 3x square y z प्लस y प्लस z का होल क्यूब। आगे समझ? आगे का समझ आ गया, पीछे का भी समझ आ गया, बस ये समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ, ये समझा दे एक बार प्लीज लास्ट टाइम। देख तू खुद तो फेल होएगी, मेरे को भी करवाएगी। हाँ तो तू ठीक से पढ़ा नहीं रहा ना मेरे को। मेरे बस की नहीं है, तेरे को सुबह से 30 बार समझा रहा हूँ मैं, और तेरे साथ रहा मैं भी फेल हो जाऊंगा। तो मैं क्या करूँ, बार-बार भूल जाती हूँ, तो एक बार और पढ़ा देना, छोटा वाला पढ़ा दे यार, ये बहुत बड़ा है। स्क्वायर वाला पढ़। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। यार समझ ही नहीं आ रहा है तो मुझे। यार तू तो अपने साथ मेरे को भी फेल कराएगी, मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। प्लीज पढ़ा देना यार, मैं फेल हो जाऊंगी। तेरे को कुछ समझ आता, तेरे को कुछ कभी याद हुआ है? और तेरे को पढ़ाते पढ़ाते मैं भी फेल हो जाऊंगा, मेरे को फेल नहीं होना, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इसे फेल हिमांशु, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं, मैं सुबह से इतनी बार पढ़ चुकी हूँ, ये मैथ्स क्यों पीछा नहीं छोड़ती है। हम घंटों माता कोड़े घंटा समझना और सीरियसली कंडीशन सिलेबस खोल के पीते एग्जाम में अंडा आता कब से बैटिंग कर रही है अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री टैक्सेशन ये तो ना बोल नहीं 10 hours later. भगवान जी प्लीज मुझे कोई ऐसी शक्ति दे दो ना कि मैं एक बार पढ़ूं, मुझे सारे फॉर्मूले याद हो जाए मैथ्स के। ये मैथ्स में ये भूल है जो मेरे सर पे मंडरा रहा है। क्या करूं यार, कल एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है, इसको मैं फेल हो जाऊंगी। हाँ एक काम करती हूँ, मम्मी के पास जाती हूँ और मम्मी को बोल देती हूँ कि मम्मी मुझे ना बुखार हो रखा है, अगर बुखार होगा तो मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगी, और अगर एग्जाम देने नहीं जाऊंगी तो फेल होने से बच जाऊंगी। हाँ ये सही है यार, मम्मी से बात करती हूँ। मम्मी मुझे तो बुखार हो गया है, मुझे लग रहा है कल मैं ये पेपर देने नहीं जा पाऊंगी। देख मेरे सामने में बहाने करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे साफ साफ पता है कल तेरा एग्जाम है इसलिए बहाने कर रही है तू। मम्मी बहाने थोड़ी ना बना रही हूँ, मुझे सच में बुखार हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं मैथ्स का एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, और वैसे भी मैंने सारे सब्जेक्ट के तो एग्जाम दिए हैं ना, मैथ्स की मैं मेडिकल लगा देगी। दिखा कुछ बुखार नहीं हो रहा है, चुपचाप से जाके पढ़ाई कर ले। प्लीज ना मैथ्स का छोड़ देती हूँ एग्जाम, वैसे भी ना मुझे मैथ्स से इतना ज़्यादा डर लग रहा है, मम्मी मैं दे ही नहीं पाऊंगी। बेटा पेपर तो तू कल ले देंगी, चल मैं पढ़ाऊंगा तेरा। चल मम्मी देखो ना सुबह से पढ़ ही रही हूँ, मेरा फ्रेंड भी मुझे पढ़ा के चला गया, लेकिन कुछ याद ही नहीं हो रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे ना मैथ्स का एग्जाम देने से ही डर लग रहा है। मम्मी प्लीज देख डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत बढ़िया इलाज है इसका। चल बताती हूँ तेरे को, चल क्या इलाज है? चल तो सही। स्कूल में भी मम्मी ऐसे बाबा ना फेक होते हैं, फेक लुटेरे, कुछ फेक ना होते, सारी पता करके फिर बुलाएंगे। तने मेरा भी है, बस शर्मा जी की छोरी है ना, वही इन्हें तो झाड़ा लगवाया करे, जाती हुआ हमेशा मैथमेटिक्स टॉप करा करे। अच्छा बाबा जी मुझे भी झाड़ा लगा दो, और मुझे ना फॉर्मूले बिल्कुल याद नहीं होते, और जितने भी चैप्टर याद करती हूँ सारे भूल जाती हूँ, मुझे भी झाड़ा लगा दो, बस इतना झाड़ा लगा देना कि मैं पास हो जाऊँ बस मैथ में। हाँ बढ़िया सा झाड़ा लगा दो पापा जी, मेरी छोरी के। चिंता मत कर पुत्री, तेरे अगर 2 नंबर भी आते होंगे वो 200 में बदल जाएंगे, ऐसा पावरफुल मंत्र। बहुत बढ़िया लगा दो बाबा जी।
हिसाब करना ना आता इसमें। अरे आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा बाबा जी बात बताओ, अखिया पास तो हो जाओगी ना? पास हो जाएगी, हमें अपना काम करने दीजिए। अच्छा बाबा जी इससे क्लास में पास हो गया तो अगले में भी ये झाड़ा चल जाओगा। अरे बाबा जी अच्छा ठीक है, मैं ना बोलती कुछ, कैसे नाराज हो रही हो आप भी? आप चुप हो जाओ, बाबा जी भी भाग जाते हैं, फिर हर बार की तरह मैं फेल हो जाती मैथ में। ए ना बोलती मैं कुछ। बाबा जी लगाओ आप। मैथ्स के सारे फॉर्मूले याद हो जाए, लड़की टॉप करे। याद हो गया इसके? सब याद हो जाएगा, अब आपकी लड़की टॉप करेगी पेपरों में। मम्मी लग तो रहा है मुझे सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे अब तो। याद हो जाएंगे। अरे मेरी दक्षिणा दे दो, दक्षिणा। हाँ मम्मी एक काम करो ना, बाबा जी को ना 51 रुपए दे दो। 51 नहीं, 5100। एक बार याद दे जो जा। हाँ 5100 देखने के लिए ना। बाबा मैं पक्का पास हो जाऊंगी ना। ये लो बाबा जी पैसे। टॉप करो। ठीक है बाबा जी, जय बाबा जी, जय राम जी की। मम्मी सही है, अभी मैथ्स पढ़ना नहीं पड़ेगा, अभी ना बड़े बाबा के आशीर्वाद से पास हो जाऊंगी मैं। पढ़ाई पे ध्यान दे रे, इतना भी विश्वास ना करा कर इन चीजों पे। चल बैठ के पढ़ाई कर। लास्ट वीक एक टेस्ट हुआ था मैथ्स का, यूनिट टेस्ट। उस टेस्ट की मैंने कॉपियां चेक की हैं और पूरी क्लास के इतने गंदे नंबर आए हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं, आज मैं सभी के नंबर नोट करके लेकर आई हूँ अपनी कॉपी में और एक एक करके बुलाऊंगी और सबको उनके नंबर बताऊंगी। कुछ नहीं करके आई थी यार जितना मैंने किया था उतना मैंने तेरे को बता दिया था, अब देखो क्या होगा रिजल्ट। मैं तो कहीं आज से मेरे तो दिल खराब है। सब में 10 में से 9 नंबर आए हैं, गुड। और अच्छा कर सकते हो। और कुछ दोस्त हैं तुम्हारे, अगर उनसे दूर रहोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक नंबर कटा है, उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट टाइम वो भी नहीं कटेगा अगर किसी के साथ रहना छोड़ दिया तो। इसके और 9 नंबर आए, मैं सोच रही इसके आधे भी आ जाए ना, मैं तो खुश हो जाऊंगी मैथ्स के लिए। नेक्स्ट काजल, आओ बेटा। और बेटर कर सकते हो क्योंकि तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती हो, इसलिए इतने कम नंबर आए हैं। फॉर्मूले में बहुत गलती थी, तो फॉर्मूले अगर याद कर लोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो क्या है ना मैं फॉर्मूले भूल जाती हूँ, लेकिन मैं आपसे याद रखूंगी। ठीक है, ये देखो तुम्हारे 6.5 नंबर है। सही है, कॉलेज के 6.5 है, मेरे 6 भी आ जाएंगे ना तो चलेगा। तो इसमें इतना तो दिखाई क्या होगा। और बेटर कर सकते हो, चलो। थैंक यू मैम। रिंकी आ जाओ। सारे के सारे बच्चे रिंकी के लिए क्लैप करेंगे। क्लैपिंग क्यों करें इसके लिए? क्योंकि बेटा रिंकी ने टॉप किया है नीचे से। पूरी क्लास में सबसे कम नंबर तुम्हारे हैं। 1.5 नंबर लेकर आई हो तुम मैथ्स में। क्या हुआ? मैथ समझ नहीं आती, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्या प्रॉब्लम है? सॉरी मैम। क्या मैम? मैथ्स लिया ही क्यों अगर तुम्हें समझ नहीं आता बेटा? ना मम्मी पापा ने जबरदस्ती दिलवा दी, मैंने तो मना किया था कि मेरे को नहीं लेनी मैथ्स। तुम्हारे पेरेंट्स से मैं खुद बात करती हूँ, जाके बैठो और मेहनत करो। ये मैथ्स क्यों याद नहीं होता मुझे? भगवान जी, इसमें मेरी कौन सी गलती है कि मुझे मैथ्स याद नहीं होती? इतनी बार ट्राई करती हूँ कि याद हो जाए, फॉर्मूले टेबल याद हो जाए, सब भूल जाती हूँ। बट बाकी सब्जेक्ट में तो मैं अच्छी हूँ ना, मम्मी पापा
What is math anxiety? Anyone? You can give it a try. Yes? Okay, in the maths, if you learn only formula or something like that, so you can achieve the things only. It can happen to both children as well as adults. No need to worry about it. You know, sometimes when we solve the questions, it feels like there is a monster hidden behind the words. But guess what? The monster is not real. It's just our imagination. You know, the monster is really, it is a mind that is telling us to overcome that fear. And the main question is, how can we overcome that fear? How can we overcome that fear? No need to worry about it. While examination, take a deep breath. Think about it twice. Just take a deep breath. Think about it. Just think what you are good at. And then try to solve the questions again. I believe that you can ace it nicely. Now the main question is that how can we express about this maths monster? You can talk about it with your parents, teachers, classmates, or friends. You can even write about it. How you feel about the maths monster. You can write it down and you will get to know what exactly is the maths monster. Even the famous personalities like artists, musicians, many doctors, scientists, they all faced this problem when they were young. But look how successful they are in their life today. And so can you all be. Now let's talk about something very interesting. That is abacus and Vedic maths. Study shows that the students who learn abacus and Vedic maths are not just good in maths, but also in many other subjects. They are the fearless warriors of mathematics. They are focused, logical, confident, and can achieve any goal in life. They are ready to face any challenges in life. You know, by doing abacus and Vedic maths, both sides of your brain work simultaneously. Like with the help of the left brain, you can think authentically, and with the help of right brain, you can think creatively and logically. That is the power of abacus and Vedic maths. So, my last message to all, just remember, maths is not scary. It's just that imaginary monster in your mind that makes us feel scared. But I believe that we all are much more braver and stronger than that fear. So let's promise together, and we will not be scared of maths. And let's fall in love with maths together. Thank you so much. Explain. Right, because some of the students are online, some of them are very difficult. Yes or no? Thank you so much. You did it very well. Thank you. Award function, but unfortunately, we don't have champion in this battle of the brains. I'm not sure why. Can you tell me the reason? Why we don't have the champion? Because everyone is champion of the champions. So, as per the result, we got to know, right? So, everyone scored above 95%, and major population, if I will say approximately 95% students got 100%. So, can we have a big round of applause for our students? So, here, just I want to start first award ceremony, and just to do this honor, I would like to invite Pawan sir. So Pawan sir, please. Right? But again, we will have some performance training as well, right? We will do all things together. The rule of this award ceremony, the student will not come here. Student will come with parents. So I want that parents will also come. तो मार देना तो बहुत है वेट सर
Ma'am, please. Excuse me. Yeah. So please. Congratulations. पार्टी शुरू हुई है कुछ भी पहले ही दे दो वार्निंग पार्टी चलेगी till 6 in the morning जी भर के नाच ले भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल में जारी जिसको अपनी जान प्यारी चुपचाप को फ्लोर पे आए नाचे गाए दूसरे उतरे नाचे गाए शाम आए माइकल जैक्सन वाले नथिंग एक्शन करके दिखाए नजर
जादू मंतर हाँ मंतर तुझा स्वॅग ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला शंभर शंभर पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय फाय शेती हाय तुझी सुंदर तुला टिंबर जे पाहिजे ते घेते I want to mention one thing. This girl wanted to do dance so badly that till yesterday she had high fever, and I also asked her not to come, but she wanted to come. She had medicine to rest, and she came. She had high fever till yesterday. So that's the desperation and dedication. So big round of applause for her. Very good. We are so proud of you. Thank you.
अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बात जंग की घड़ी में तुमको हार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आगे धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे हाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम की, तो उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूल की रगों में आज वाग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बात जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। Okay, Riya ma'am. Rohini ma'am, are you there? Please come. Pawan sir. Max sir, first of all, you want to say? They have gained 100% and more than 90. All of guys, I think, all of us more than 95%. Yes, you can say most of the students got 100%. So I say only that is the power of consistency. What is the meaning of consistency? कौन बोल सकता है? What is power of consistency? Yes. Okay, very good. Power of consistency means your result will be better and better. Okay. So what is power of consistency? Consistency makes your habit. Okay, and your habit makes you effortless. ठीक है? जैसे एक छोटा बच्चा अपने पापा को बोलता है मुझे एक साइकिल चाहिए। ओके, क्या चाहिए? साइकिल चाहिए। छोटे बच्चे बोलते हैं किस किस के साइकिल चलाना आता है? रेज योर हैंड। मैं तो नहीं कराता हूँ। वेरी गुड। साइकिल चलाना आता है बेटा आपको? ओके, व्हाट्स योर नेम? ओके, व्हाट्स योर नेम? ओके, वेरी गुड। तो आपको साइकिल चलानी आती है। जब पहला दिन साइकिल चलाया था क्या ऐसे ही चला पा रहे थे? नो। पहला दिन आपके पास साइकिल आया, उसके बाद पहला दिन जब चलाया तब क्या हुआ? कभी पेडल को देखा, कभी सामने देखा तो पेडल नहीं चल रहा, पेडल देखा तो साइकिल नहीं चला। ये सब नो। लेकिन आप धीरे धीरे अगले दिन भी सीखने गए, फिर अगले दिन सीखने गए, अगले दिन फिर गिर गए। गिरा था कि नहीं? फिर
बार आप साइकिल चलाने के बाद आज तो हाथ खोल के हाथ चला रहे हो साइकिल, ऐसे चला रहे हो? दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। आपके पास जो भी समय है, दिन में 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जो भी है, यू शुड हैव टू कंसिस्टेंस एवरी डे। अगर आप रोज कंसिस्टेंटली काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और होमवर्क करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? 100%। कुछ ऐसे सवाल आएंगे, आपको लगेगा कि अच्छा मेरे को एक प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बार बार करने के बाद भी वही गलती हो रहा है। आपको कभी कभी ऐसे लगेगा कि बार बार करने के बाद भी सेम गलती हो रहा है, लेकिन पावर ऑफ कंसिस्टेंसी ऐसे है जो दिखता नहीं है, लेकिन बीच में अंदर अंदर होता रहेगा, तो विल गेट द रिजल्ट इन ए लॉन्ग टर्म। ओके, सो एवरी डे यू शुड हैव टू प्रैक्टिस। क्या करना है? डन? पक्का? ना? कौन बोला यस? नाम बताओ। पक्का करोगे? प्रोमिस? मुझे पता है। पक्का करोगे? हाथ करो। बोला है प्रोमिस? दोनों से I promise to do practice every day. Okay? So all the best for your future. So thanks a lot by participating this event. So it's a very wonderful. You have done a very wonderful job. Thank you so much. Okay.
She also scored 98%.